let us continue to the other sums of the chapter probability. As probability is quite easy for the passing, as it has a weightage of 11 marks in basic mathematics and even 4 marks in standard mathematics. So if you are preparing this chapter very well, you should get the full marks, and it is quite easier chapter, and hence we have considered this chapter as one of the important chapter for the revision. So let us continue. Lastly I have explained about the introduction of the different terminologies related to the probability, in which we have seen a different events like impossible event, then sure or certain event, then we saw that probability of any event would be greater than or equal to 0, but it would be less than or equal to 1, and all these things we have seen, and we have seen the formula of the probability of any event is equal to number of favorable outcomes to the given event divided by total number of outcomes of the experiment, right? Now we will go with exercise 15.1, in which we have seen different 8 sums. Now we will go with the 9th one. A box contains 5 marbles that is of red color. Different colors marbles are there. So here we will see that 5 red marbles are there. Now we will just note down what is given. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? These are the 3 things that we need to find out. We know the formula, but before that, whatever the given thing is that we will record out. In each of the sum, remember that whenever you are writing something, just take it the data and put it as the data. Sometime it is happening, suppose you are doing one of the sum, कोई आप एक sum कर रहे हैं और कभी-कभी data wrong लिया जाता है. जैसे मान लीजिए कोई स्टेटिस्टिक का सम है, उसमें और में 2 सम्स है, मतलब आजू बाजू में 2 सम है, तो कभी क्या होता है, ऊपर वाले का डेटा लिख देते और नीचे वाले का कैलकुलेशन करते हैं. तो जस्ट फोकस कि कौन से वाला सम हम कर रहे हैं, उसका पहले डेटा सारा लिख लीजिए एज अ क्वेश्चन. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि वी हैव 5 रेड मार्बल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड मार्बल्स कितने हैं, देयर आर 5 रेड मार्बल्स. दूसरे कौन से मार्बल है उसके अंदर, व्हाइट मार्बल्स, इट इज 8. आई राइट इट, व्हाइट मार्बल्स, हाउ मेनी आर देयर, इट इज 8. and one more, that is 4 green marbles. I'll write it. Green marbles कितने हैं, we'll do the total 5 plus 8 plus 4 17. चलो हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स है, 70. So we'll write it here, that is total number of marbles are done. Now what to do? अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं. पहला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड. रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है. नाउ यू नो द फॉर्मूला. ईच टाइम एज आई सेड दैट यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला सेम, सिर्फ इवेंट का नाम चेंज कर दो. जैसे मैं पहले को बोलता हूँ इवेंट ए, लेट मी से दैट इज इवेंट ए. तो इवेंट ए कौन सी लेता हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल. ओके, वी नो द फॉर्मूला. अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, आपको एग्जाम में क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है. मैंने यहाँ पे इवेंट का नाम लिख दिया, मतलब फॉर्मूला में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए. मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूँ, फेवरेबल outcomes
to event A divided by total number of then now we can see that what is to find out the probability of red marble. Red कितने हैं हमारे पास 5, so we'll put it here, that is number of red marbles are 5 divided by total number of marble कितने हुए हमने यहाँ फाइंड किया, that is 17, so answer is 5 upon 7. ठीक है, simple. Second one, what they said, white marble. चलो व्हाइट मार्बल के लिए क्या करेंगे, विल से दैट इज इवेंट डी, अगेन सेम प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख दो इवेंट डी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी, यहाँ लिखता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट डी इज इक्वल टू विच इज दैट इज ऑफ द व्हाइट मार्बल. चलो व्हाइट मार्बल हमारे पास कितने हैं, 8, so that is 8 upon 10. 17 will be as it is because it's a total number of marbles are of 17. And next one you can see it, read it properly, not green. अभी इसमें दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो ग्रीन मार्बल को हटा दो, तो व्हाट आर द रिमेनिंग मार्बल्स दैट यू कैन सी. अगर ये टोटल 17 में से मैं ग्रीन मार्बल को हटा दूं, ग्रीन कितने हैं 4, तो आई कैन राइट इट कि इवेंट I give the name event C, not green marble. Getting not a green marble. चलो not a green मतलब green को हटा दो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ out of total marble if green marble are not considered, then remaining marbles are which are those, तो कौन से बचे, रेड प्लस व्हाट इज दैट, तो रेड कितने हैं 5 प्लस व्हाइट कितने हैं 8, टोटल कितने हुए. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू 13 अपॉन 7. दूसरी तरीके से फाइंड आउट करना हो तो और एक वे, कौन सा, पहले ग्रीन की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर लो. दिस इज जस्ट आई एम शोइंग यू ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या है. तो ग्रीन मार्बल, हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स आर देयर 4, मतलब उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो पी सी इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल अगर मैं लेता हूं तो इवेंट सी इज व्हाट, टू गेट ग्रीन मार्बल. तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/17. उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ये इवेंट ना हो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट. So that we know PE plus PE bar is equal to 1. In that way we can write it, that is PC plus PC bar is equal to 1. अभी PC की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 4/17 plus PC bar is equal to 1. In that way if you will see, so PC bar is equal to 1 minus 4/17. Now we need to take the LCM. यहाँ पे एलसीएम होगा 17, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 17 से, 17 minus 4, 17 minus 4 is what, 13 upon 17. We got the same answer, 13 upon 17, 17 upon 17. दोनों मेथड नहीं करनी है, कोई भी एक मेथड आप कर सकते हैं. लिख लो. क्वेश्चन अभी मत लिखो, बाद में क्वेश्चन लिख लेना. नाउ जस्ट राइट डाउन द आंसर.
You understand how does it come? Which one? Hmm? This one. Total number of outcomes. That is a formula. यहाँ पे पूरा लिखना event B is what? Event B is to getting white marble. White marble is how much? 8. So it is 8 by 70. इसके बारे में जो सम्स हो गए, I will do it on board. You can copy from that video also later. So it will that will not waste your much time also. Later on also you can copy, but do it. Just don't keep it as it is. घर पे अगर वापस छोड़ दिया ऐसे नहीं. Done? This one is extra. Either do it that method or this method. You can do any one. Don't do both the methods. I have shown both the methods because sometimes you can go with this method also, or otherwise by that method also. Next question. Question number 10 of the exercise 15.1. Let us read it carefully. A piggy bank contains 150 paise coin. Here the coins are given. A different coin of different amount is given. First, what is given? 100 coins of 50 paise. So I write it. 50 paise coins. How much are there? That is equal to. यहाँ पे लिखता हूँ numbers. कितने numbers है? So it is 100. Then afterwards, what do they say? 51 rupee coin. 1 rupee का कितना है? 50. 1 rupees coin equal to. Then next, 22 rupee and 10 5 rupee. 22 rupees. And 5 rupees के कितने coin है? Now we will do the total of all the coins. The amounts are different. 50 पैसे के हमारे पास 100 coin है, 1 rupee के, 52 rupees के, 25 rupees के, 10. टोटल कितने हो गए? 180.
Sure. 180. 180 coins are there total. Now what to find out? If it is equally likely that one coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be? Now what to do? That piggy bank को अगर हम ऊपर से नीचे करते हैं, राइट, दे सेड दैट टर्न अपसाइड डाउन, मतलब ऐसे करने पे एक कॉइन निकलता है, और वो कॉइन कैसा है? इट इज ऑलरेडी सेड दैट इक्वली लाइकली आउटकम्स, हमने ऑलरेडी बात की है। इक्वली लाइकली मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल कम। जैसे कॉइन को हम करते हैं तो वी डोंट नो कि वेदर इट विल कम आइदर हेड और टेल, तो दैट वे, so that you can see that what is the probability that it will be a 50 पैसे coin, right? 50 पैसे coin, उसको मैं बोल देता हूँ event A। probability, चलो probability को मैं बोलता हूँ PA, probability of 50 पैसे coin। 50 पैसे के coin, हमारा फॉर्मूला अगेन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल मतलब हमारे पास टोटल जितने कॉइन है वो आउटकम में आ जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में कितने हैं? 180। वी विल पुट इट हियर डिवाइडेड बाय 180, एंड हाउ मेनी आर देयर आउट ऑफ दैट? दैट इज ऑफ 50 पैसे 100, सो वी विल पुट इट हियर, दैट इज 100 अपॉन 180। पहले देखो तो एक जीरो कट, सिंपल, यहाँ पे ही कट मत कर देना, आपको सीधा लिखना है नीचे, ये सब कट वट मत दिखाओ, सिंपल रफ पेपर में करके कर दो। रफ लास्ट पेज को रफ पेज बना दो, लिख दो ऊपर रफ। नाउ यू विल सी 10 upon 18, 5 2s are 10 and 9 2s are 18, मतलब 5 upon, अभी डिवाइड होगा बट यस 5 के फैक्टर में कहा 9 या 3 आया, तो इट इज 5 upon 9। वेरी सिंपल, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो बस। Now next, what do they say next? Will not be a 5 rupee coin। चलो दूसरा क्या है? Event B। अभी इसमें भी दो तरीके से होगा। Will not be 5 rupee coin। चलो तो कैसे कर सकते हो? माइनस कर दो। ओके, 5 रुपीज के जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको हटा दो और बाकी काउंट कर लो। या तो पहले 5 रुपीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो और उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड कर। कौन सा इजी है? 5 रुपये के कॉइन को हटा दो, नंबर ऑफ कॉइन्स को हटा दो, बट उसमें प्रॉपरली लिखना है। क्या लिखना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बी द 5 रुपीज कॉइन, इट मीन्स करके लिखो। The 5 rupees coin are to be removed, then the remaining coins are of 50 paise 100 coins, 1 rupee 50 coin, 2 rupees 20 coin, and the sum total of all this will be 177. That is what you will have to write there. Okay, and then we will write it, therefore the probability of that event T is equal to, denominator में क्या आएगा? B, 10 coins निकल गए तो बचा क्या? 170। 170, is it true? No, what? Yeah, whatever I said, yes, मतलब आधे नींद में। 170 रुपीज कॉइन किस चीज के है? 5 रुपीज को हटाने के बाद बचे हुए कॉइन जो हमें आंसर में आने वाला है। बट हियर वी वांटेड टू गो विद द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ओनली। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर देयर? 180। तो डिवीजन में क्या आएगा? 180 ओनली, एंड नॉट बी द 5 रुपी कॉइन, मतलब ये 5 वाला हटा लिया तो कितने कॉइन आए? 170। दैट विल पुट इट हियर 170 upon 80, not 70 equal to 17 upon 80, and 17 is also prime number। इसका मतलब उसके ऊपर हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? नो। डन? सिंपल है, एकदम सिंपल है, बट मैंने शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में लिखना डिटेल में। ऐसे करके आ जाओगे फिर बोलोगे कि पता नहीं टीचर ने 1 मार्क काट लिया।
This is what I will explain. Here what you need to write it, event B, not be the 5 rupees coin, means the 5 rupees coin would not be considered. Then the remaining coins are 50 paise, 100, 1 rupee 50, 2 rupees 20, total is 170. 170 divided by 180. Clear? See, these sums are quite that much of easy that you need not to use much of your brain, and that's why this chapter is quite easy to get the marks. दूसरे में क्या थोड़ा सोचना पड़ता है, यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है. सोचना है पर क्या सोचना है, टोटल कितना है और उसमें से हमारा फेवरेबल कितना है. होता है ना क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और उसमें से मेरे फेवर में कितने, हमें पता है. 2 डिवाइडेड बाई 65 हो सकता है, किसी का 60 डिवाइडेड बाई 65 हो सकता है, किसी का 1 डिवाइडेड बाई 65 हो सकता है. हिमसेल्फ और हरसेल्फ, नो वन एल्स इज इन फेवर. द सेम वे वी नीड टू गो विथ दिस सम्स आल्सो. आई होप यू कैन राइट इट लेटर ऑन फ्रॉम दैट, बट लिखना वापस बोलना. चलो नेक्स्ट सम. गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. उनके एक्वेरियम के लिए वो फिश बाय कर रहे हैं. क्या फिश बाय करनी है भैया? यू आर टॉकिंग अबाउट बाइंग अ फिश. विच फिश यू वांट? दैट गोपी ऑलरेडी बॉट. द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random. See, Gopi buying a fish from fish market for the aquarium. खाने के लिए नहीं है. The shopkeeper takes out 1 fish at random from the tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. देखो ये तो orally भी हो सकता है, राइट? हमारे पास टोटल फिशेस कितने हो गए? तो 5 मेल fishes and 8 फीमेल फिशेस. टोटल फिशेस कितने हो गए? 30. Done. Now what do they ask? What is the probability that the fish taken out is a male fish? अगर वो इवेंट को मैं बोलता हूँ, let me say the event E, then it is equal to male fishes divided by total number of fishes, so it is 5 upon 30. Very simple. Do it in homework. बता दिया, फिर भी होमवर्क में लिखना करना है, मुझे दिखाना है. नेक्स्ट. अब हाँ, नाउ द सम विल लिटिल बिट ऊपर के लेवल पे जा रहा है. अभी तक एकदम सिंपल, ऊपर का रखो नीचे का रखो सॉल्व. नाउ थोड़ा थोड़ा ब्रेन अभी यूज करना पड़ेगा, और ये टाइप के जो सम्स आएंगे इट वुड बी इन 3 marks, स्पेशली फॉर द बेसिक, बिकॉज बेसिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है 11. मतलब उसमें 2 mark वाले भी आएंगे, 3 mark वाले भी आएंगे, 1 mark वाले भी आएंगे. 4 mark में ना आए तो अच्छा है, लॉटरी है, क्योंकि 4 mark में तो ऑलरेडी अपने कंस्ट्रक्शन और थियरम है. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. एक एरो दिया है, वो कितने पे रेस्ट करता है? कोई भी दिए हुए नंबर में से किसी एक पे. 1 2 4 5 6 7 एंड 8. देख रहे हो स्पिनिंग व्हील लिखा है टेक्स्ट बुक में. एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम. मतलब हमेशा बोल दिया है कि वो शोले वाला नहीं है, सिक्का भी नहीं है, हमारी जो डाइस है वो भी नहीं है, कुछ नहीं. इक्वली लाइकली आउटकम्स आ सकते हैं आउट ऑफ 1 to 8 एनी वन. These are equally likely. What is the probability that it will be point at 8? अभी पहले हमें क्या करना है? The total number of outcomes in this game is equal to 8. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 क्यों हो गया? बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 या 8 में से किसी पे भी एरो स्टॉप कर सकता है. उसमें से पहला क्या पूछा है? 8 नंबर पे. हम यहाँ वापस कंफ्यूज हो जाते हैं.
प्रॉब्लम क्या होता है, 8 आते हमें लगता है कि 8 मतलब सारे आउटपुट तो आ गए, मतलब 8/8 इज इक्वल टू 1, मतलब श्योर इवेंट। 8 नंबर से उसमें से 1 पे भी आ सकता है एरो, 2 पे भी जा सकता है, 3 4 5 6 7 8। 8 is one of the number out of that. It means in that way if I'll say that, then I consider event A, then PA is equal to what is that, divided by 8 कर दो, और उसमें से 8 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 पे जाने की 1/8, 3 पे 1/8, 4 पे 1/8, 5 पे 1/8, 6 1/8, 7 1/8 एंड 8 1/8। या कोई भी एक नंबर पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है एंड टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 8, मतलब 1/8। सेकेंड वन, एन ऑड नंबर। पहले तो हमें ये जो नंबर दिए हैं उसमें से क्या फाइंड करना है, ऑड नंबर। ये टोटल 8 नंबर में से ऑड नंबर्स कौन से हैं, पहले हम ऑड नंबर पे फोकस करते हैं, 1 3 5 दिए हुए नंबर्स में से ऑड नंबर ये है, हम यहाँ लिखते हैं ऑड नंबर्स आर, यहाँ पे लिखो विच आर दोस 1 3 5 7, लिखो आप कौन से नंबर है वो भी लिखो, 1 3 5 7, टोटल आर इज इक्वल टू 4। द नंबर्स आर, कौन से नंबर है, तो ये नंबर है 1 3 5 7, तो टोटल नंबर्स, total odd numbers are done. Now what to do, same, that is probability of event B, formula रख दो, हर बार formula रखना भूलना मत, formula रख के ही करो, formula का आधा मार्क कटना चाहिए नहीं। formula के अंदर देखो तो total divided by तो हमारा फिक्स ही है, that is 8, और इसमें से ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने नंबर्स है, 4, तो दैट वुड बी 4/8। 4/8 मींस 1/2, 1/8 1/2, 4 2 8, मतलब 4 कट और यहाँ पे होगा 4 2 8, 1/2। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, यहाँ लेता हूँ इवेंट C, नंबर ग्रेटर देन 2, चलो 2 से ग्रेटर नंबर फाइंड करो, 2 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसी में लेना है, 2 से मतलब मत फिर चालू मत कर देना, 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, सारे नंबर बड़े हैं, जो दिया है उसमें से बड़ा कौन सा है, दैट इज 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल काउंट करो 6, मतलब PC is equal to 6/8, then 3 2s are 6 and 4 2s are 8, मतलब 3/4, simple। next, a number less than 9, a number less than 9, silly question, हमारे पास इनपुट जो दिया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से हमें फाइंड क्या करना है, लेस देन 9, मतलब सारे के सारे ही आने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि ग्रेटर देन 9 या तो ग्रेटर देन 8, जो भी 0, ग्रेटर देन 8, हाँ, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो बदल जाएगा, 8 और ग्रेटर देन 8 तो क्या आता, 1/8, बिकॉज 8 इज देयर, बट यहाँ क्या पूछा है, लेस देन 9, तो लेस देन 9 नंबर्स कौन से हैं, यहाँ लिखता हूं इवेंट D, लेस देन 9 numbers are
ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D इज इक्वल टू 8/8 which is equal to 1, नीचे लिख दो इट्स अ सर्टेन श्योर इवेंट। जब आंसर आता है 1 मतलब क्या, इट इज अ श्योर इवेंट, इट इज अ सर्टेन इवेंट। ये नाम याद रखना, श्योर इवेंट से ज्यादा कौन सा सर्टेन, श्योर तो याद रह जाता है बट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। सर्टेन इवेंट मतलब इट इज सर्टेनली हैपन, जब भी करो तो वही आए तो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्टेन। दो ही इवेंट है, एक है सर्टेन और एक है इम्पॉसिबल। आपको दिख रहा है ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट, समझ में आया है जी, इट इज क्वाइट इजी। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये चैप्टर के तो एक भी मार्क नहीं जाएंगे, तो आज तक क्यों गए, व्हाटएवर, जाने दो, गया वो गया, अभी नहीं जाना चाहिए। अभी अच्छे से प्रिपेयर करो कि अभी एक भी मार्क नहीं जाना। और ये सब की घर पे प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस। डाइस को ले लो, डाइस देखिए ना सबने, सांप सीढ़ी लूडो 1 2 3 4 5 and 6, आउटपुट्स आर 6, इट हैज अ 6 फेसेस। कैसा होता है डाइस, ऐसा होता है, सबने देखा है। ऐसा होता है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, चल इधर ध्यान दो, 1 बैक साइड पे 2 3 4 5 6, राइट, जैसे डस्टर की तरह ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 and 6। अभी पर ये ऐसा नहीं है, मतलब ये उछालोगे तो इट इज नॉट इक्वली लाइकिंग, बट इन डाइस यू नो दैट इट इज इक्वली लाइकिंग। क्या आएगा वी डोंट नो। अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। चलो डाइस को अगर हम उछालते हैं तो डाइस के ऊपर कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर आएंगे। अभी समझा रहा हूँ साहब, बाद में शांति से लिख लेना, जो बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। भी लिखूंगा पूरा नहीं, बट जो बोल रहा हूँ वैसा आपको लिखना है। द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑन अ डाइस विल बी 1 2 3 4 5 and 6, द टोटल विल बी 6। नाउ व्हाट टू फाइंड आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। टोटल नंबर्स कितने हुए, टोटल आउटपुट्स और आउटकम्स, वापस बोलोगे सर पुट कहाँ पे आ गए, total outcomes are 6. Out of that, what do they ask us in this event, prime number, event A, a prime number, a prime नहीं लिखता हूँ क्योंकि प्राइम ज्यादा है। प्राइम नंबर्स कौन से है इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम, मैथमेटिक्स में प्राइम का मतलब क्या है, जो कंपोजिट ना हो ना तो वो स्पेशल हो, बिकॉज 1 इज अ स्पेशल नंबर, राइट। कंपोजिट मीन्स व्हाट, जिसका हमें डिवीजन मिलता है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ और 1, ये दोनों को फैक्टर को छोड़ के कोई और ज्यादा फैक्टर्स उसके हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। नाउ वी नीड टू गो फॉर प्राइम। प्राइम मतलब उसके दो ही फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ एंड 1 को उसमें हम नहीं ले सकते बिकॉज 1 इज अ स्पेशल नंबर, तो उसमें प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, प्राइम नंबर्स आर 2 इज देयर, यस, बिकॉज 2 1s are 2, और कोई है उसमें फैक्टर 3, यस डन, 3 1s are 3, और उसमें कोई फैक्टर नहीं हो गया 4,
4 वन जा 4 है, बट उसमें और भी एक है 2 टू जा 4, मतलब इट इज नॉट द प्राइम। 5 वन जा 5, नॉट पॉसिबल एनीथिंग एल्स। 6 वन जा तो 6 तो है ही, बट 3 टू जा 6 भी है। So now the prime factors are 2, 3 and 5. Done? So now our I'll write it directly, आपको फॉर्मूला और सब लिखना है। टोटल आर हाउ मच 6, उसमें से ये हमारे कितने हैं 3, मतलब 1 अपॉन इवेंट बी। What is event B? A number lying between 2 and 6. 2 एंड 6 के बीच का नंबर, चलो यहाँ यहीं पे देख लो 2 और 6 के बीच में 3 4 5, 3 4 5, ये भी कितना हुआ है 3। That means again I write it, that is probability of event B is equal to 3 upon 6 is also equal to 1 upon 2. See the simplification of the things. बट हमने माइंड में ये डाल के रखा है मैथ्स इज सो हार्ड, मैथ्स इज सो हार्ड, इसीलिए हम हार्ड रखते। नथिंग इज हार्ड। आपके पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट फर्स्ट उसको देखो कि क्या है। दूर से सब कुछ हार्ड ही लगेगा अगर आप उसमें देखोगे ही नहीं। मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया था, स्विमिंग पूल के बाजू में कितनी भी प्रैक्टिस करोगे, स्विमिंग पूल में जाने के बाद बुड़बुड़ आवाज ही आएगी। क्यों? बिकॉज यू हैव डन द प्रैक्टिस एट द साइड। प्रैक्टिस कहाँ करनी है? स्विमिंग पूल के अंदर जाके करनी। सिमिलर है मैथ्स में, एक बार उतर के तो देखो कितना इजी है ना। हमने उतरा ही नहीं, मैथ्स सब कुछ हार्ड। पॉइंट हाँ वो इजी है, हेड एंड टेल। डाइज में क्या ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6, वो एरो वाले में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्ड्स में क्या है 1 to 52, दैट ऑल्सो यू विल सी। ओके लेट अस गो अहेड। और क्या है? एन ऑड नंबर। इवेंट सी क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से है? ऑड ही है ना। ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 एंड 5। कितने हुए वो भी? मतलब अगर मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं तो c इज इक्वल टू 3/6 1/2। क्या बात है, सबके आंसर सेम 1/2 1/2 1/2। इसमें भी हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर सेम आया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1/2 ही आए। मतलब मेरी कहीं पे गलती हो रही है, एक जगह पे 1/3 करता हूँ। हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट है, बाजू वाला ही हमेशा करेक्ट करता है। होता है ऐसा। इवन थियरम आता है ना, तो वो भी थियरम समझ में नहीं आया तो नीचे से लात मार के पूछते हैं धीरे से, विच थियरम इज दिस। सुपरवाइजर इधर उधर साइन कर रहे हो, थोड़े बिजी हो, इसलिए मैं धीरे से विच थियरम, वो धीरे से बोलेगा पाइथागोरस, लिख के आ जाओगे। फिर बाहर आके पता चलेगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। फिर उसको वापस उसके पास जाओगे, क्या तूने तो बोला था पाइथागोरस, वो बोलेगा मैंने बोला था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तूने वो कन्वर्स नहीं सुना। और खुद को पता होगा कि ये कन्वर्स लग रहा है, पर क्या उसने बोला मतलब करे। कीप फेथ ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखो, ना कि दूसरे के ऊपर। हमारा तो ज्यादा विश्वास दूसरे के ऊपर है कि ये बोल रहा है वो सही है, मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। क्यों? वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया और आप गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हो ऐसा। और आप कॉन्फिडेंट हो तो ऑक्सफोर्ड वाले को भी आप चैलेंज दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि उसको सब कुछ आता हो। राइट? सो कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। चलो नेक्स्ट सम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। A card is drawn from well shuffled deck of 52 cards। अभी ये कार्ड के लिए पहले मैं जो लिखवा था वो खास लिखा। कार्ड्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं हम। उस दिन शायद मैंने थोड़ी बहुत बात की थी कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। राइट? अगर 52 को डिवाइड करो तो दो कलर्स में हो गए। एक होगा
रेड और दूसरा होगा राइट। अभी रेड के अंदर कौन से सिंबल्स हो गए? तो रेड के अंदर एक होता है हार्ट, क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट शेप। ये कितने पेयर होते हैं? 13 कार्ड्स, ठीक है। उसी में रेड में दूसरा होता है ऐसा, जिसको बोलते हैं बैंक। इसके कितने कार्ड्स होते हैं? फिर ब्लैक के अंदर होता है ऐसा, ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेड कार्ड। ये भी कितने होते हैं? फिर दूसरा होता है ब्लैक कलर के अंदर ऐसा कुछ होता है, उसको बोलते हैं क्लब कार्ड। बहुत सारे ट्री कार्ड होते हैं, ट्री नहीं क्लब। ऐसे ट्री ओके हमारे समझने के लिए ओके, बट वहां पूछा कि क्लब कार्ड तो टाइट फिश पूछ लिया कि 3 नंबर का क्लब कार्ड फाइंड आउट करने की मतलब होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो सोचते रह जाए क्लब कार्ड क्या है। जो क्लब में खेलते हैं वो वाला कार्ड, सारे क्लब में खेलते हैं, दैट इज आल्सो 13। अब ये 13 के अंदर बाइफरकेशन क्या है? अरे के अंदर 13 में बाइफरकेशन क्या है? तो वो 13 का बाइफरकेशन है, पहले आता है एक साथ, इसको बोलते हैं ए सी। फिर 1 नहीं आता, फिर क्या आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नंबर्स आते हैं? Then afterwards what numbers have come? Then afterwards what it comes? Jack. Then आता है queen and then आता है king. Okay? Now in this these 3 के जिसके ऊपर क्या ड्रॉ किया होता है? स्पेस। इसके लिए वो कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? These are called स्पेस कार्ड्स। कोई भी एक के अंदर मतलब कि हर एक 13 का बाइफरकेशन है, कोई भी 13 ले, ये 13 के अंदर भी वही होगा, ये 13 के अंदर भी ये होगा, ये 13 के अंदर भी ये होगा। ये 13 कार्ड्स हैं, 13 4 जा 15। इसमें ये जो कार्ड है 1 जिसको बोलते हैं ए, जेड, क्वीन और किंग, जिसको स्पेशल कार्ड्स भी बोलते हैं। स्पेशल कार्ड, स्पेशल क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू हायर है। यूजुअली अगर देखो तो जैक की वैल्यू हम लेते हैं 11, 12 एंड 13, और एक का है वैसे दिखता है एक है वैल्यू, बट इसको क्या बोलते हैं हम? हुक्म का पत्ता ऐसा बोलते हैं, एस कार्ड। वो आता है तो बाजी हो गई। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग्स अबाउट दी 52 कार्ड्स। ये खास लिखो क्योंकि ये आता होगा तो आधा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। राइट डाउन दिस वन। और ये जो है बाकी के, इसको हम बोलेंगे डिजिट कार्ड। डिजिट वाले जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट्स, सॉरी 11 नहीं 10 डिजिट्स। इसको हम स्पेशल कार्ड बोलते हैं और उसको बोलते हैं डिजिट कार्ड, 2 to 10। इसीलिए बोलते हैं मैथ को खेलते खेलते कर सकते हैं। खेलने की चीज ही आई जिसमें लूडो वाला डाइस आता है, क्रिकेट वाला कॉइन आता है, कार्ड वाले तो सारे के सारे कार्ड आ गए, वो डायल आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख लिया?
अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो एक चीज समझो कि कार्ड वाले जो भी सम्स है वो इजीली आप सॉल्व कर पाओ। और कार्ड वाला सम आने की प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स में 99% है। And if you know this, then you can solve 3 mark question very easily. जब हम 33% के बारे में सोचते हैं तो 3 is a great digit. It's a huge digit to get a passing mark. ठीक है, हो गया? Okay. Now let us see the question one by one. One card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. 52 कार्ड की डेक में से वेल शफल्ड मतलब कुछ भी निकलेगा, इक्वली लाइकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अभी मैं वापस इसको अभी मैं रफ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एक एक इवेंट हम लिखेंगे और करते जाएंगे। पहली इवेंट को मैं बोलूंगा इवेंट ए। कौन सा है? किंग ऑफ रेड कलर। पहली बात तो किंग कितने होते हैं टोटल कार्ड्स के अंदर? 4। ऑलरेडी हमने बताया उसमें से एक टाइप का कार्ड है रेड और एक टाइप का है ब्लैक। तो हमें यहाँ क्या पूछा है? किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में कितने किंग्स आएंगे? 2। हर एक के अंदर ऐसे स्टार्ट होके किंग पे एंड करना है। इसमें एक होगा और इसमें एक किंग होगा, मतलब टोटल किंग्स कितने होंगे? 2। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी PA इज इक्वल टू, नीचे तो 52 फिक्स है, कार्ड में ऊपर नीचे है ही नहीं, वो फिक्स है। और टोटल किंग्स कितने होंगे? 2। 1/26। वापस 2/52 करके रख मत देना, यहाँ पे भी सिली मिस्टेक में मार्क्स जाते हैं। इतना करके रख दिया। आंसर क्या आता है? सिंप्लीफाई करना है ऐसे। 1/26, 26 2 जा 50। नेक्स्ट, फेस कार्ड। फेस कार्ड, अभी पहले हम फेस कार्ड देखते हैं। हर एक के अंदर फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड कौन से है? चेक, क्वीन एंड किंग। ऑलरेडी लिखा है हमने, ये 3 फेस कार्ड है। ये किसमें होते हैं? एक के अंदर, मतलब हार्ट है तो हार्ट के 3, डायमंड है तो डायमंड के 3, स्पेड है तो उसके 3 और क्लब है तो उसके 3। मतलब टोटल क्या हुआ? 3 4 जा 12। फेस कार्ड कितने हुए? इवेंट बी फेस कार्ड एक लाना, इसीलिए लिखा है फेस कार्ड, क्योंकि एक निकालना है। बट टोटल हमारे है उसमें से एक निकालना है, मतलब टोटल आर 52 और उसमें से फेस कार्ड टोटल कितने हमने किए? 3 4 जा 12, मतलब 12/52। करो सिंप्लीफाई। 4 3 जा 12 एंड कितने 4 जा 52? 13 4 जा 15। अदरवाइज कट करो, पहले 2 जा तो 26 2 जा 6 2 जा, फिर 13 2 जा 3 2 जा, मतलब यहाँ क्या आएगा? 3/। नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड। देखो यहाँ स्पेसिफाई किया है, फेस कार्ड चाहिए अपन कौन सा वाला? रेड कलर का। चलो अभी आप भी बता सकते हो कितना है? इवेंट सी, रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 12। उसमें आधे 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 ब्लैक है, आधे रेड है, तो 6 फेस कार्ड्स आर देयर। रेड के अंदर चाहिए हमको, रेड में इसके अंदर ये 3 और इसके अंदर ये 3, मतलब टोटल हुआ 6। 6/52 कितना होगा? 3/26 है ना?
26 के अंदर 3 वाला फैक्टर नहीं है, ये तो वापस ढूंढेंगे और एक आध उड़ा देंगे। बहुत सारा तो बहुत मस्त उड़ाते हैं, यहाँ भी उड़ाते हैं। ये 3 और ये 6 मतलब 2 जा 22 1/20 और जोरदार उड़ाते हैं कभी कभी। ऐसे नहीं उड़ता है, पूरे डिजिट को पूरे डिजिट के साथ दिखना ही चाहिए। ये 3 और 6 मतलब यहाँ से 3 कट, यहाँ से 6 कट, यहाँ 6 मतलब 3 2 जा 1/22 आंसर लेके आएंगे। वाह, नया मैथ्स। तो नया मैथ्स लाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेना। द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, देखो हार्ट के 13 पत्ते, उसमें से जैक चाहिए तो कितना होगा? वो 1 ही होगा। मतलब वो क्या आएगा, उसको मैं सीधा लिखता हूँ इवेंट डी, तो क्या होगा 1/50। जैक तो एक ही होगा ना हार्ट में, हर एक के अंदर एक ही जैक होगा। अगर टोटल जैक पूछते तो, बट हार्ट का जैक पूछा मतलब एक, बाकी सब दिल बिना के है, एक हार्ट वाला है, वही हुआ ना, हार्ट वाला जैक, बाकी सब में हार्ट नहीं। स्पीड, चलो स्पीड कार्ड कितने हैं टोटल? और इवेंट की, चलो 52 और स्पीड कार्ड टोटल कितने हैं? 13, मतलब 13/50 कट होगा या डेफिनेटली 13 4 जा 52 1/4। नेक्स्ट, अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड में क्वीन कितनी है? only one queen, so we can say that EF, तब इवेंट का नाम देना, इवेंट ए ये है, इवेंट बी वो है, सी ये है, डी ये है, और टोटल क्या हुआ था यहाँ पे 52 और क्वीन कितनी है? 1, मतलब 1/52। नाउ आपको कुछ भी पूछा जाए तो कैन यू राइट, हो जाएगा। इफ यू आर नोइंग दिस थिंग, इसके बारे में सब कुछ पता है, तो कोई भी चीज पूछे आप लोग उसको जोड़ तोड़ के फोड़ के जोड़ दो, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, ऐसा पूछे कि ब्लैक कलर का चेक और रेड कलर की क्वीन, तो भी कितना होगा? 2 + 2 4। ब्लैक कलर का जैक मतलब उसमें 2 हो गए, और रेड कलर की क्वीन वो भी 2 होगी, फिर उसमें 4 + 4 8 मत कर देना। कुछ भी पूछे इसमें से तो इसी के अंदर लॉजिक में हमारा आंसर है, और उसमें से आंसर उठा लो। डिनोमिनेटर में तो 52 हमारा फिक्स है, कार्ड आएगा। बट मान लो कि उसमें से ऐसा बोल दिया जाए कि उसमें से एक क्वीन को उठा के साइड पे रख दो तो 51 हो जाएगा। कभी क्वेश्चन में ऐसी भी टेक्निक और ट्रिक करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी किंग्स आर द क्वीन ऑफ रेड कलर, फिर आप लिखोगे 2/52। फिर ऐसा बोलोगे कि वो 2 क्वीन को निकाल लेने के बाद, मतलब हम लोग रॉन्ग ट्रैक पे थे, हमारा तो वो फिक्स 52 तो उसमें क्या बोल रहे हैं, 2 क्वीन को साइड पे रख दो, तो हमारे पास कितना रहा 50, और फिर बोलेंगे कि अभी क्वीन लाने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो कितनी बची 2/50। अभी कितनी बचेगी 50, क्योंकि वो 2 क्वीन को हमने साइड पे रखी। थोड़ा लॉजिकली सोचो पढ़ो। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि यहाँ पे 50 पैसे के एक बैग ए और बैग बी, अब देखना मार्वल के पेपर सेट में है, 50 पैसे के इतने कॉइन, 5 रुपये के इतने, 1 रुपये के इतने हैं, फिर यहाँ लिखा होगा 50 पैसे के इतने, 10 रुपये के इतने, 20 रुपये के इतने, दोनों को साथ में कर दिए और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहाँ 50-50 2 बार आया, मतलब 50-50 वाला टोटल हो जाएगा। 5 रुपीज़ अलग है, यहाँ 10 रुपीज़ है, यहाँ 2 रुपीज़ है, यहाँ 20 रुपीज़ है, मतलब बाकी के जो है वो सिंगल, और दोनों को मिला के टोटल कितना हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। बट सिंपल है, मर्ज किया तो दोनों अंदर गए, ऐसा सोचो, और उसी तरीके से हमें करना है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। 5 कार्ड्स,
यहाँ पे सिर्फ हमें कितने कार्ड दिए हैं 5, मतलब बाकी के कार्ड को मैं हटा देता हूँ। अंदर अंदर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, और अभी टाइम है, बेल होते पता चल जाएगा, थक गए हो तो। जान लिया टाइम कितना? पूछ रहा है क्या? टाइम पूछ रहा है? पेंसिल दे रहा है? वो पीछे वाले से बात कर रहा था, इसको पेंसिल दे रहा है। वाह क्या बात है। ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना? ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. 5 cards. It is given. Which 5 cards are there? 10, Jack, Queen, King and Ace. 10, Jack, Queen, King and ये 5 कार्ड दे दिए हैं। ऑफ विच कलर? डायमंड। 5 कार्ड डायमंड के हमें दे दिए हैं। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। इन शॉर्ट के पत्ते उल्टे रखे। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। ये 5 ऐसे रख दिए और उसमें से एक उठाना है। वो मैजिशियन बोलता है ना, वैसे एक देख लो, रख दो। अभी मैं ढूंढ के देता हूँ आपने कौन सा देखा है। वैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? चलो, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA। टोटल कितने हैं? 5। उसमें क्वीन कितनी होगी? डेफिनेटली 1 ही होगी। ठीक है, 1/5। नाउ सी, जो मैंने बोला वैसा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड, क्वीन को निकाला और कहाँ रख दिया? साइड पे। उसके बाद में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अभी कार्ड कितने बचे? 4। अभी 5 नहीं है, उसमें से क्या लाना है? एस कार्ड। मतलब यहाँ होगा इवेंट बी, नीचे होगा 4 और एस कार्ड कितना होगा? 1। और दूसरी चीज पूछी है, कौन सी है? अब क्वीन, क्वीन कितनी होगी? 1 है। ऑलरेडी क्वीन तो निकल गई है। वापस लिखेंगे 1/4। क्वीन को निकाल के हमने ऑलरेडी साइड पे रख दिया, मतलब हमारी इवेंट हो जाएगी 0/4 इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। और लास्ट वाला वर्ड इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इसके लिए नेक्स्ट वाला होमवर्क, ये जो बहुत ही इजी है, उसमें है डिफेक्टिव पेन। ओ भाई, जाने को नहीं बोला। डिफेक्टिव पेन एंड नॉन डिफेक्टिव पेन। 135 नॉन डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स विद द 15 डिफेक्टिव। 15 ना, नहीं, 132 12 में मिक्सअप हो गई है। उसमें 12 डिफेक्टिव है और 132 नॉन डिफेक्टिव। टोटल कर दो और फिर उसमें से फाइंड करो कि डिफेक्टिव का या जो पूछा हो हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट टाइम विल सी 17 एंड ऑनवर्ड। नेक्स्ट टाइम में ये चैप्टर फिनिश।